Good afternoon, welcome to EduSet Network. Friend, as you know, we are having discussion on public administration, and today we discuss partly public administration theory, classical theory and scientific management theory. We will move further and we will discuss another theory. And for discussion on this topic, we have in the studio same resource person, Dr. Mani Bhushan. He teaches political science in Delhi University and a keen eye on the administration and interest in public administration. So on behalf, I welcome Dr. Mani Bhushan for EduSet lecture on this very topic. Welcome, sir. Thank you. Good afternoon. Yesterday we discussed the scientific management theory propounded by Taylor, and then we discussed Fayol's universal principles, the 14 principles that he propounded, which was the beginning of the classical administrative theory. But the classical administrative theory reached its zenith, its peak, with the writings of Gulick and Ervik. And that is why when we talk of the classical school of administrative theory or classical administrative theory, we generally talk of Gulick and Ervik, even though these two scholars were highly impressed and influenced by the writings of Taylor and Fayol. They have admitted. They edited in 1937 papers on the science of administration. And here they summarized the principles of administration and made the readers and the followers believe that the universally applicable principles could bring about maximum efficiency in any condition, anywhere, and that is why these are scientific. We had discussed yesterday that the quest at that time was to think of ways and means to maximize efficiency, efficiency meaning output, and also to make the discipline scientific. By making scientific, they wanted to earn respect for the discipline because it was a new discipline. 1887, as we had discussed yesterday with the article of Woodrow Wilson, we believe that public administration as a discipline got recognition, and then there was this quest to earn respectability by making it scientific. The formulations of Gulick and Ervik are popularly known as classical theory or administrative management theory. Some also call it engineering approach. Why, we'll come to that later. Now, these two scholars, like Taylor and Fayol, attach more importance to structure rather than the people who are there in the structure. They believe that most of the friction, confusion and sufferings of the people are because of faulty structure. If you design properly, if the structure is designed properly and right people are placed in right places, most of these confusions and overlappings and sufferings would be minimized, taken care of. Lack of design in organizations, according to them, is illogical, cruel, wasteful and inefficient. अगर डिज़ाइन नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इलॉजिकल है,
क्रूअल है, वेस्टफुल है, इनएफिशिएंट है। अर्विक आर्ग्यूज दैट स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन्ड लाइक एन इंजीनियरिंग डिज़ाइन, कि आपको पहले जो ऑर्गेनाइजेशन आप सोच रहे हैं उसका स्ट्रक्चर पहले डिज़ाइन करिए, जैसे इंजीनियरिंग में करते हैं कि पार्ट को अलग अलग करके डिज़ाइन करके एंड देन यू पुट देम टुगेदर, और उसके बाद फिट द राइट पीपल एट राइट प्लेसेस। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा साइंटिफिकली परफॉर्म कर पाएगा, ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएगा। फेयोल ने, जैसा कल हमने बात की थी कि फेयोल ने मैनेजरियल फंक्शंस बताए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस वहाँ से लेकर के गलिक एंड अर्विक ने, स्पेशली गलिक ने जो लिखा उसने एक कुछ इनके फंक्शंस के बारे में बात की एडमिनिस्ट्रेटर्स के, और उन्होंने 7 फंक्शंस की बात की, जिसको एक एक्रोनिम के माध्यम से हम पोस्ट कॉर्ब का नाम देते हैं। इसका जो डिटेल है वो इस तरह से है। पी से आता है प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टाफिंग, डी डायरेक्टिंग, सीओ कोऑर्डिनेटिंग, आर रिपोर्टिंग एंड बी बजटिंग, POSDCORB, पोस्ट कॉर्ब। प्लानिंग कहते हैं कि आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने हैं, और उन लक्ष्यों को या उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं आपके पास, उनको कैसे हम यूज़ करेंगे, क्या उसका तरीका होगा, क्या मेथड होगा, इन सब को प्लानिंग के अंतर्गत रखते हैं गलिक। ऑर्गेनाइजिंग कि आप क्रिएट करते हैं डिफाइन करते हैं और अरेंज करते हैं सारे कार्यों को अलग अलग डिविजन्स और सब डिविजन्स में। दिस इज़ ऑर्गेनाइजिंग, कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, जो भी काम करेगा, उसको कई भागों में आप तोड़ देते हैं, तोड़ करके उसको बताते हैं कि इस भाग में ये है, इस भाग में ये है, इस भाग में ये है, और वो जो एक साथ जब रखते हैं उसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। स्टाफिंग का तात्पर्य है इनका रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, पोस्टिंग, प्रमोशन, सब कुछ जो पर्सनल का काम है वो स्टाफिंग का मतलब वो है। डायरेक्टिंग, व्हाट, हाउ एंड व्हेन टू डू, क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये डायरेक्शन बिल्कुल क्लियरली सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को जाना चाहिए। दिस इज डायरेक्टिंग। कोऑर्डिनेटिंग, इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट्स, कहा कि जब आपने कई पार्ट्स बना दिए, सब डिविजन्स क्रिएट कर दिए और बता दिया कि इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है, तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बिना कोऑर्डिनेशन के आप गोल अचीव ही नहीं कर पाएंगे। अलग अलग पार्ट्स तो परफॉर्म करेंगे, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट तो वो गोल है, वहाँ तक आने के लिए कोऑर्डिनेशन इज मैंडेटरी। रिपोर्टिंग आमतौर पर जैसे हम समझते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ रिपोर्टिंग होती है, लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैनेजरियल फंक्शन की, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग का मतलब है कि आपको रिपोर्ट लेना है। उसके लिए आपने क्या सिस्टम डेवलप किया है जिससे कि रेगुलर बेसिस पे रिपोर्ट्स पहुँचती रहें, जहाँ पर निर्णय लिए जाने हैं वहाँ तक रिपोर्ट्स का आदान प्रदान होता रहना चाहिए। और बजटिंग में सब कुछ जो फिजिकल प्लानिंग एंड बजट एंड ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये मैनेजरियल फंक्शंस पोस्ट कॉर्प, जिसको आज भी लोग बहुत इज्जत से देखते हैं, समझते हैं। अर्विक ने एक किताब लिखी एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के 8 प्रिंसिपल्स बताए जो हर ऑर्गेनाइजेशन पर लागू हो सकते हैं। दे आर एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, और जहाँ जहाँ ये अप्लाई किए जाएंगे वहाँ वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एफिशिएंट हो जाएगा। क्या क्या है ये प्रिंसिपल्स? पहला प्रिंसिपल है ऑफ ऑब्जेक्टिव,
अर्विक का कहना है कि कोई भी संगठन आप बनाते हैं, एनी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव डेफिनिट पर्पस फॉर विच इट हैज बीन क्रिएटेड। अगर वो क्लैरिटी होगी तभी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर काम करेगा। प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस किसके बीच? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच। जितनी अथॉरिटी हो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ऐसा नहीं हो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और अथॉरिटी उसको दी ही नहीं गई हो, या बहुत ज़्यादा अथॉरिटी आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट नहीं हो सकता है। आपका काम आप गोल अचीव नहीं कर पाएंगे एफिशिएंटली। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, समझने की ज़रूरत है इसको अच्छे से, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पर मतलब है कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके जो कार्य हैं, उनके जो फंक्शंस हैं, उनके लिए जो सुपीरियर है, जो सुपरवाइज़र है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा फुल्ली। इसलिए जो मैनेजर है, जो सुपरवाइज़र है, उसकी ड्यूटी है कि सबऑर्डिनेट्स को सही तरीके से काम करवाए, क्योंकि उसके काम की जिम्मेदारी सुपीरियर की है, सुपरवाइज़र की है। द स्केलर प्रिंसिपल, यहाँ पर ये कहते हैं कि अथॉरिटी जो है वो हियरार्किकल होनी चाहिए और पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, कि जो ऊपर में सबसे ज़्यादा जिसके पास अथॉरिटी है वो बहुत कम हो, बिल्कुल नोक, और जिनके जैसे जैसे कम हो अथॉरिटी वैसे वैसे नीचे उनकी संख्या बढ़ती जाए, और ये पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। पांचवा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, जिसमें ये कहते हैं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल लिमिटेड होता है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता, सुपरवाइज नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो एक सुपरवाइज़र के नीचे कितने लोग डायरेक्टली उसको असिस्ट करेंगे, ये फिक्स होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर ये कहते हैं कि एक व्यक्ति को एक ही तरह का काम करना चाहिए, इससे उसकी दक्षता बढ़ती है। अगर आप बार बार एक ही काम करते रहेंगे तो आप उसमें ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, ज़्यादा दक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो इनके हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के कार्य होते हैं, कई लेवल्स पर काम होते हैं, इन सब के बीच सामंजस्य स्थापित करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। एंड द एट्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है कि हर स्तर पर, हर लेवल पर जो भी आप अपॉइंट कर रहे हैं व्यक्ति को, या जिस भी कोई पोजीशन आप क्रिएट कर रहे हैं, उसको क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसका डेफिनेशन प्रॉपर होना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन कभी ना हो। इसी तर्ज पर लूथर गलिक ने भी 10 प्रिंसिपल्स बताए ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे फेयोल ने 14 बताए थे, तो गलिक ने 10 बताए, और इसमें ये फेयोल से काफ़ी प्रभावित हैं, ये इसमें दिखता भी है। पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन, कार्यों का बंटवारा और स्पेशलाइजेशन, दक्षता। दूसरा, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कि जब आप खास तरह के कार्य करने के लिए विभाग बना देते हैं तो वो विभाग किस आधार पर बने, तो उसकी चर्चा वो गलिक करते हैं। तीसरा है कोऑर्डिनेशन थ्रू हियरार्की, कि जब आप पद सोपान के थ्रू आप कोऑर्डिनेशन करिए, कि भाई निचला जो सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करता है, वो अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करता है, वो अपने सुपीरियर को करता है, और सुपीरियर जो है वो जब नीचे कम्युनिकेट करता है तो पहले इसको करेगा फिर इसको करेगा। तो हर लेवल से गुजरते हुए कम्युनिकेशन ऊपर जाएगा, हर लेवल से गुजरते हुए कम्युनिकेशन नीचे आएगा, तो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ाव बना रहेगा। दिस इज कोऑर्डिनेशन थ्रू हियरार्की। चौथा कहते हैं ये डेलिबरेट कोऑर्डिनेशन। डेलिबरेट कोऑर्डिनेशन का मतलब कि
लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हर किसी को साथ लाने की जो डिलिबरेट कोशिश होती है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है इनके हिसाब से, कि उसके लिए जो आप सिस्टम डेवलप करिए कोऑर्डिनेशन के लिए वो। पांचवा है कोऑर्डिनेशन थ्रू कमिटीज़। समितियां बना करके आप कोऑर्डिनेट करते हैं कि भाई सारे मुद्दों को के ऊपर हम समितियां बना देते हैं, आप भी अपनी बात कहिए, आप भी अपनी बात कहिए, और इस तरह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। छठा है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। सातवां है यूनिटी ऑफ कमांड। आठवां लाइन एंड स्टाफ। नौवां डेलीगेशन। और 10वां स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये 10 सिद्धांत लुथर गलिक ने बताए ऑर्गेनाइजेशन के, कि अगर इन सिद्धांतों पर संगठन बनाया जाएगा तो ये साइंटिफिक होगा, मोस्ट एफिशिएंट होगा। अब वर्क डिवीजन और स्पेशलाइजेशन पहला प्रिंसिपल है। क्या मतलब है इसका? तो गलिक कहते हैं कि मेन डिफर इन नेचर, कैपेसिटी एंड स्किल। मेन डिफर इन नेचर, प्रकृति में, कैपेसिटी, काबिलियत में, और इनकी जो क्षमता में, और स्किल, काबिलियत में। बट डेफिनेटली गेन बाय स्पेशलाइजेशन। कहते हैं कि अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम स्पेशलाइज्ड कराएंगे उनको बार बार एक ही काम कराने की ट्रेनिंग देंगे, प्रॉपर्ली उनको तैयार करेंगे, तो वो उस कार्य में दक्षता हासिल कर लेंगे। हिंदी में कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, तो वो वाले तर्ज पे ये बात है। इसके बाद फिर जब डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात हमने की कि अलग अलग विभाग क्रिएट किए जाने चाहिए अलग अलग फंक्शंस के लिए। अब ये विभाग कैसे क्रिएट किए जाएं, किस आधार पर क्रिएट किए जाएं, उस पर गलिक कहते हैं कि 4 आधार हो सकते हैं जिन पर डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाने चाहिए। पहला, पर्पस या फंक्शन, क्या उद्देश्य है, पर्पस, उसके हिसाब से, उसके लिए आप डिपार्टमेंट क्रिएट कर दीजिए उसके आधार पर। दूसरा है प्रोसेस, प्रक्रिया, प्रक्रिया के आधार पर डिपार्टमेंट विभाग बनाए जा सकते हैं। तीसरा है पर्सन और क्लाइंटील, कि किसके लिए है, उसके आधार पर बनाए जा सकते हैं। और चौथा प्लेस, स्थान, हर स्थान की अपनी सीमाएं हैं, अपनी संभावनाएं हैं, तो उसके हिसाब से बनाए जा सकते हैं। अगर आप भारत सरकार का एग्जाम्पल लें तो प्लेस के हिसाब से जो हिल काउंसिल्स बन रहे हैं, चाहे वो दार्जिलिंग में हो, चाहे वो मेघालय में हो, या मिज़ोरम में हो, या आसाम में हो, तो ये प्लेस के हिसाब से बनाए जाते हैं। या ट्राइबल एरियाज़ घोषित किए जाते हैं प्लेस के हिसाब से। या वो आपके डेजर्ट डेवलपमेंट के लिए कुछ बनता है, तो उसमें है कि स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का जो मिलियू है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसको, उसके आधार पर आपने एक विभाग बनाया जो वहाँ के लिए स्पेशलाइज करेगा, वहाँ उस काम के लिए। जहाँ तक पर्सन और क्लाइंटील की बात है तो ट्राइबल वेलफेयर, अब ख़ास तौर पर ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए ये काम करेंगे। तो इनका पूरा ओरिएंटेशन, इनकी पूरी ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर तरह से की जा सकती है। तो इस तरह से विभाग बनाए जा सकते हैं। तो अगला जो था प्रिंसिपल वो था कोऑर्डिनेशन। इफ देयर आर डिविजन्स एंड सब डिविजन्स, कोऑर्डिनेशन बिकम्स मैंडेटरी। अगर आपने बंटवारा कर दिया है और विभाग और उसके अंग और छोटे छोटे सब विभाग बना दिए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो सारे अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। गलिक कहते हैं कि इट कैन बी अचीव्ड इन 2 वेज। 2 तरह से आप कोऑर्डिनेशन को अचीव कर सकते हैं। कैसे? बाय ऑर्डर रीचिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन हियरार्किकल सिचुएशन, कि जहां हर स्तर से होते गुजरते हुए ऑर्डर नीचे आ रहा है, तो हर स्तर पर लोगों को पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो उससे आप इंश्योर कर लेते हैं। और दूसरा, सिंगलनेस ऑफ पर्पस। सिंगलनेस ऑफ पर्पस से क्या मतलब है कि हर एम्प्लॉय के दिमाग में ये
बैठ जाए कि ये लक्ष्य हमारा है और इस लक्ष्य को हमको प्राप्त करना है, तो वो वॉलंटरली अपनी पूरी क्षमता के साथ उस लक्ष्य की प्राप्ति में जुड़ जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। गलिक कहते हैं कि ये दोनों ही जो तरीके हैं ये आपस में एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों को अगर मिला करके आप कोऑर्डिनेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर गलिक कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट समथिंग दैट डेवलप्स बाय एक्सीडेंट। कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं हो जाता है, इट डज नॉट डेवलप बाय एक्सीडेंट, इट मस्ट बी वन by intelligent, vigorous, persistent and organized effort। आपको कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए पूरे दिमाग का इस्तेमाल करके और विगरसली बार बार उसको कोशिश करके और तब उसको हासिल करना पड़ता है। अगला प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। जो गाइडिंग इसके पीछे विचार है वो ये है कि वन मैन कैनॉट सर्व टू मास्टर्स। अगर दो या दो से ज़्यादा लोग एक ही व्यक्ति को बार बार ऑर्डर देने लगेंगे तो व्यक्ति कंफ्यूज्ड हो जाएगा, वो उसको समझ में नहीं आएगा इसकी माने कि इसकी माने। कई बार वो दोनों कंट्राडिक्टरी भी हो सकते हैं, कंट्राडिक्टरी नहीं हो तो कम से कम डिफरेंट तो हो ही सकते हैं। तो वैसे में वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा और उसकी एफिशिएंसी घट जाएगी। और एक दूसरी बात जो आती है वो आती है कि जब व्हेन यू आर रिपोर्टिंग टू वन पर्सन तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू दैट पर्सन, और आपको ये एहसास होगा कि आई एम रिस्पॉन्सिबल टू हिम एंड ही कैन टेक मी टू टास्क। लेकिन अगर 2 या 3 मास्टर्स हैं तो आप इररिस्पॉन्सिबल होने का लाइसेंस मिल जाता है कि वो कुछ कहे तो मैं उसके पास था, मैं वो कहे तो मैं उसके पास था। तो इस तरह से तो कहा कि इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ज़रूरी है ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो और एफिशिएंसी तभी हम इंश्योर कर पाते हैं। लाइन एंड स्टाफ, अब ये एक बड़ा ये टर्म मिलिट्री से आया है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइजेशन में बहुत दिनों तक समझ में नहीं आता था लोगों को ये क्या कहना चाह रहे हैं। और अभी भी आगे की क्लासेस में बात होगी कि लाइन एजेंसीज़ एंड स्टाफ एजेंसीज़ करके जब हम कोशिश करते हैं समझने की तो मुश्किल होती है। इसलिए अब आगे चल के बात होने लग जाती है लाइन फंक्शन एंड स्टाफ फंक्शन, क्योंकि जब ओवरलैपिंग होने लगती है तो फंक्शंस को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे करते हैं? लाइन जो है वो कार्यकारी है, वो एग्जीक्यूटिव है, वो कर रहा है, सामने दिख रहा है, उसके ऑर्डर्स से हो रहा है। स्टाफ जो है वो एडवाइजरी है कि जो हायर लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके पास समय की कमी होती है, वो सब कुछ पढ़ नहीं सकते हैं, सब लोगों से मिल नहीं सकते हैं, सारी बातें उनको पता होनी चाहिए, लेकिन उतनी कैपेसिटी हर के में हो ज़रूरी नहीं है। तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए कुछ लोगों को अगर रखा जाता है जो उनको बताएं कि भाई क्या बातें हो रही हैं, इसको कैसे देखा जा सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो to devote time exclusively to knowing, thinking and planning functions, not doing, knowing, thinking and planning, इसमें हायर एग्जीक्यूटिव्स को मदद करने के लिए so that the executives can perform their central task of command, control and coordination। उनका जो असली काम है वो ठीक से कर पाएं, इसके लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है जो उनको एडवाइस कर सकें, जो उनको ब्रीफ कर सकें कि क्या सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, थिंग्स लाइक दैट। स्पैन ऑफ कंट्रोल, नो सुपरवाइजर कैन सुपरवाइज डायरेक्टली मोर देन 5 और मैक्सिमम 6। अब यहाँ पर देखिए कि एक सुपरवाइज़र है, वो सीधे सुपरवाइज करना है उसको, उसके नीचे कितने लोग जो काम कर रहे हैं वो अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं, तो वो कितने लोगों को प्रॉपर्ली सुपरवाइज कर सकता है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल को लेकर बहुत लोगों ने तरह तरह की बातें की, जिस पर हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर गलिक कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टाफ का सही प्रयोग हो तो ये स्पैन ऑफ कंट्रोल थोड़ा सा
बड़ा भी हो सकता है, ये गुंजाइश बनती है। तो ये जो गलिक एंड अर्विक की जो प्रिंसिपल्स हैं और जो बातें उन्होंने कही हैं, इन बातों ने इनको क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थियरिस्ट्स के रूप में एस्टेब्लिश किया। इनके क्रिटिसिज्म्स भी हुए कि इन्होंने आदमी को महत्व ही नहीं दिया, इन्होंने मशीन समझ लिया आदमी को भी, व्यक्ति को मशीन समझ लिया, स्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया कि स्ट्रक्चर अगर सही है तो आप आदमी को बस डाल दो, वो काम करने लग जाएगा। उसकी जो क्षमताएं हैं, उसकी जो इनिशिएटिव लेने की और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमताएं हैं, उन पर कोई भी विचार इन्होंने नहीं किया। तो इसलिए क्लासिकल थियरी को लोग बहुत क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। लेकिन जिस वक्त ये थियरी बनाई, एस्टेब्लिश की जा रही थी, उस वक्त को अगर हम समझें तो उस वक्त का तकाजा ये था कि आप यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स दे करके डिसिप्लिन को साइंटिफिक बनाने की कोशिश कर रहे थे, और कैपिटलिज्म का जो जोर था पूरे विश्व में, वहाँ पर आप मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम एफिशिएंसी, प्लस जो कॉलोनियल पावर्स थे उनको ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चाहिए था जो बहुत एफिशिएंट हो। तो अगर उन बातों को ध्यान में रखें तो उन सारे क्रिटिसिज्म्स के बावजूद क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिसिप्लिन के लिए। अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर की तरफ, जिसका नाम है मैक्स वेबर। इनको हम क्लासिकल स्कूल में भी रख सकते हैं क्योंकि ये भी प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, क्योंकि ये भी स्ट्रक्चर को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन वेबर ने इतने बड़े कैनवास पे अपनी थियरी को रखा कि इनको किसी स्कूल में नहीं डालकर इनको एक अलग इनके मॉडल को हम अलग से ही देखते हैं, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, और कहते हैं कि भाई ये इनके सिद्धांत को हमको अलग से समझने की ज़रूरत है। और ही वॉज अ सोशियोलॉजिस्ट, जर्मन, और इन्होंने बहुत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पेक्टेबिलिटी दिलाने में बहुत इनकी अहम भूमिका है। हमने अभी तक जो भी बातें की हैं, ये सारी बातें की हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठनों के बारे में, और वेबर भी औपचारिक संगठनों की ही बात करते हैं। टास्क ओरिएंटेशन की बात करते हैं। इसके पहले जो वर्ड है ब्यूरोक्रेसी, इसको डिगोनी, मार्क्स, मिशेल्स, इन सब ने इसका प्रयोग किया था, लेकिन पहली बार एक ब्यूरोक्रेसी की सिस्टमेटिक कॉम्प्रिहेंसिव थियरी अगर किसी ने दी तो वो मैक्स वेबर ने दी। और मैक्स वेबर कितने महत्वपूर्ण हैं वो इस बात से पता चलता है कि इनके बाद जिन लोगों ने भी लिखा, उन्होंने या तो वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी है उसी के डिफरेंट वर्जन्स की बात की, या उसको कंट्राडिक्ट करने की कोशिश की। तो ही बिकम्स द रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल future writings, all writings which came later. एक बात और भी यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहिए कि कई बार हम जब ब्यूरोक्रेसी वर्ड जैसे ही यूज़ करते हैं तो सरकारी प्रशासन की बात आ जाती है, सिविल सर्विसेज, ब्यूरोक्रेसी का ये काम है। लेकिन जब वेबर ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया और जब ब्यूरोक्रेसी का अपना मॉडल दिया, तो वो केवल सरकारी संगठनों की बात नहीं कर रहे थे, सरकारी प्रशासनिक संगठन की बात नहीं कर रहे थे। इनका जो ये मॉडल है, ये किसी भी बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैलिड है, और उसमें सरकारी संगठन भी आता है। ये अलग बात है कि आजकल ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी वर्ड यूज़ किया जाता है प्रशासन, जो सरकारी प्रशासन है उस तंत्र के लिए, लेकिन ये बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये सिद्धांत आया था। वेबर ने अपनी बहुत सारी जो बातें की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उसमें
His writings on domination, leadership and legitimacy are very, very important. क्या क्या? Domination, leadership and legitimacy. He distinguished between authority, control and command. Authority, control and command, and linked authority with legitimacy. कि authority और legitimacy एक साथ जाते हैं. कंट्रोल और कमांड वो अलग डायरेक्शन की चीज़ें हो जाती हैं. अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन इट इज़ हेल्ड लेजिटिमेट बाय द पीपल. जब आप सत्ता की बात करते हैं, अथॉरिटी की बात करते हैं, तो वो तभी लागू होता है जब आम आदमी उसको लेजिटिमेट माने. अदरवाइज फिर आप कंट्रोल की बात करेंगे ज़बरदस्ती. कानून के माध्यम से जब आप सत्ता स्थापित करते हैं जिसको लोग मानते हैं कि ये लेजिटिमेट है, दैट इज अथॉरिटी. ही कंसिडर्ड एडमिनिस्ट्रेशन एज एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी और डोमिनेशन, while most contemporary writers viewed it as service or duty. ये क्या कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डोमिनेशन और अथॉरिटी से जुड़ा हुआ है, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं. ज़्यादातर स्कॉलर्स एडमिनिस्ट्रेशन को ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ते हैं. वेबर कहते हैं नो, दिस इज एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी और डोमिनेशन. और इसीलिए ये कहते हैं कि जो ये डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट आइडियल्स है जिसमें कि एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी को मिनिमाइज करने की बात करते हैं, वेबर इज कंप्लीटली अगेंस्ट इट. क्या कि नहीं, ये उचित नहीं है. वेबर टॉक्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ डोमिनेशन और अथॉरिटी. कि आप जब दूसरों के को आदेश देते हैं और दूसरे आपको ओबे करते हैं, तो ये कई तरह के हो सकते हैं. और उसके आधार पर वेबर कहते हैं कि एक होता है करिश्मेटिक अथॉरिटी. करिश्मा है, गांधी जी का करिश्मा था, नेल्सन मंडेला का करिश्मा था कि वो कुछ भी है कि भाई सब लोगों को आ जाना है, आ गए. सब लोगों को जुलूस में निकलना है, निकल गए. ये करिश्मेटिक है, दैट इज. दूसरा होता है ट्रेडिशनल. राजा साहब ने कह दिया तो इसलिए हम ओबे कर देंगे. या जो ट्राइबल चीफ है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी है कि भाई अब उसकी बात मानेंगे. या मंदिर के पंडित जी हैं या मौलवी साहब हैं, ट्रेडिशनल अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं और लोग इनको ओबे कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं. लेकिन तीसरा जो होता है वो है लीगल रैशनल अथॉरिटी. और जहां लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात आती है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस है वो ब्यूरोक्रेसी है. व्हेन अथॉरिटी इज लीगल एंड इट इज रैशनल का मतलब जब आम आदमी उसको उचित समझे. रैशनल का मतलब कि जिसमें जो दिमाग जिसको उचित माने. तो लीगल रैशनल अथॉरिटी जब आपको एक्सरसाइज करनी है तो उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस है वो ब्यूरोक्रेसी है. इसके बाद ये कहते हैं कि जब लीगल रैशनल डोमिनेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र आता है वो ब्यूरोक्रेसी है. तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके बारे में कहते हैं कि भाई वो मोस्ट एफिशिएंट होगा. ब्यूरोक्रेसी जो है वो मोस्ट एफिशिएंट है. दूसरा कि ये इंडिस्पेंसिबल है, इसके बिना काम नहीं चलेगा. तीसरा परमानेंट है, एक बार अगर ये आ गया उसके बाद फिर आगे नहीं, गुंजाइश नहीं है, इसको मानना पड़ेगा, यही रहेगा. चौथा रैशनल है, आपके दिमाग को ये आपके माइंड्स को अपील करेगा.
आपको लगेगा कि इससे फ़ायदा हो रहा है और तब आप उसको कंटिन्यू करिएगा, उसको परमानेंट बनाए रखिएगा। एंड फिफ्थ, सुपीरियर टू ऑल अदर फॉर्म्स इन डिसीशन, प्रिसिशन, रिलायबिलिटी, डिसिप्लिन एंड स्टेबिलिटी। जितने भी दूसरे प्रशासन तंत्र हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं, उनसे ये सुपीरियर होगा। किन किन संदर्भों में? निर्णय लेने के संदर्भ में। दूसरा, प्रिसिशन, एकदम टू द पॉइंट काम करने के संदर्भ में, दक्षता के संदर्भ में। रिलायबिलिटी, भरोसे के संदर्भ में। डिसिप्लिन एंड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी देगा ये। बहुत आगे चल करके जब आप पढ़ेंगे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें पढ़ेंगे कि फ्रेंच सिस्टम के बारे में कहा जाता है, गवर्नमेंट्स कम एंड गो, एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, और वहाँ पे ये कहते हैं कि अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेटिक है तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। वेबर ये भी कहते हैं कि द डिग्री ऑफ एडवांस टुवर्ड्स अ ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियलडम प्रोवाइड्स द डिसिसिव यार्डस्टिक फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट। कहते हैं कि हर राज्य जो है वो मॉडर्नाइज होने की कोशिश कर रहा है, हर स्टेट मतलब देश, वो मॉडर्नाइज होने की कोशिश कर रहा है, और इसके कितना मॉडर्नाइज हुआ है उसके लिए यार्डस्टिक क्या है कि आप ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियलडम तक पहुंचने की दिशा में कहां तक पहुंचे हैं। जहां पर पूरी तरह से ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टेब्लिश हो गया है, उसको मोस्ट मॉडर्न सोसाइटी आप कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। अब बात आती है कि भाई ब्यूरोक्रेसी स्टेब्लिश करेंगे कैसे? तब वहां पर कहते हैं कि टू अचीव द अबव मेंशन्ड क्वालिटीज एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर कुछ विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं अगर होंगी संगठन में, तभी आप ब्यूरोक्रेसी की कल्पना कर सकते हैं। क्या क्या विशेषताएं? पहला, डिवीजन ऑफ फंक्शंस, स्पेशलाइजेशन, स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस। ये पहले के स्कॉलर्स ने भी ये बात कही कि किसी भी बड़े संगठन में कार्यों को बांटना पड़ता है, आपको विभाग बनाने पड़ेंगे, आपको सब डिविजन्स बनाने पड़ेंगे, आपको यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। तो किस विभाग में, किस सब डिविजन में, किस यूनिट में क्या काम होगा, कैसे काम होगा, किन लोगों के द्वारा होगा, आपको ये सारी व्यवस्था करनी होगी, और वहाँ पर स्पेशलाइजेशन के सिद्धांत पर आपको काम करना पड़ेगा कि कौन से काम के लिए कौन से लोग सबसे उपयुक्त हैं और उनको स्पेशलाइज कराइए। पहली बात ये। दूसरा, डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफिशियल्स एंड ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जब आप प्राइवेट बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ पर एक तो जो है वो मालिक है जिसने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसने स्टेब्लिश किया है ऑर्गेनाइजेशन को, और दूसरे होते हैं जो उसको चलाते हैं। तो इनका कहना है कि ओनर्स जो हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो है कि भाई प्रॉफिट कितना हो, संगठन कितना बड़ा होता चला जाए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करके अल्टीमेटली गोल उसका भी वही होगा, लेकिन डे टू डे अफेयर्स में अंतर होना चाहिए। मालिकों को अलग रखिए और जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को अलग रखिए। तीसरा, फुल टाइम जॉब्स होने चाहिए। ये नहीं कि आपको कोई काम करने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया, उसको हटा दिया, उसको एक आदमी यहाँ भी काम कर रहा है, वहाँ भी काम कर रहा है, वहाँ भी काम कर रहा है, तो उसकी एक तो दक्षता नहीं बढ़ेगी, दूसरा उसकी एफिनिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं डेवलप करेगी, और इसके कारण एफिशिएंसी नीचे रह जाएगी। तो इसलिए फुल टाइम जॉब्स होने चाहिए। जो भी व्यक्ति हो वो सिर्फ ये काम करे और पूरे समय तक यही काम करे। चौथा, हियरार्की, पद सोपान, कि जब आप अथॉरिटी की बात करते हैं तो अथॉरिटी शुड फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
और टॉप पे मैक्सिमम अथॉरिटी हो, बॉटम में सबसे कम हो, लेकिन टॉप पर सबसे कम लोग हों, बॉटम पे सबसे ज़्यादा लोग हों. सो दिस इज़ द नॉर्मल एक्सेप्टेड हियरार्किकल सिस्टम. पांचवा, इम्पर्सनल ऑर्डर. इम्पर्सनल ऑर्डर का मतलब होता है authority, the power of control which derives from an acknowledged status in the office and not in the particular person who performs the official role. कि जो चेयर है, जो अथॉरिटी है, जो पोजीशन है, सारी जो शक्तियां हैं वो उस चेयर में है, उस पोजीशन में है. जो व्यक्ति उस पर बैठा है उसके पास नहीं है. सो इम्पर्सनल का मतलब हुआ कोई भी हो जो इस चेयर पर बैठेगा उसके पास ये अथॉरिटी होगी. और इससे वो जो पहला वाला प्रिंसिपल था कि मालिक और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग रखना चाहिए, वो भी यहाँ पे दोबारा स्टेब्लिश हो रहा है कि जिस व्यक्ति को आपने एक चार्ज दिया है उसको अपने हिसाब से काम करने दीजिए, डोंट इंटरफेयर देयर, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, वो उस कुर्सी के पास वो अथॉरिटी है, उस पोजीशन के पास वो अथॉरिटी है. छठा, न्यूट्रलिटी. ये एक बड़ा इशू है कि एक तरफ जब चाइना है या पहले सोवियत यूनियन था या और भी सोशलिस्ट स्टेट्स थे, तो वहाँ पर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी थी कि एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन है सरकार का और उस आइडियोलॉजिकल पोजीशन के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी काम करती थी. लेकिन वेबर कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को न्यूट्रल होना चाहिए. उसका इससे कोई मतलब नहीं है कि पॉलिसी कौन बना रहा है, क्या बना रहा है. वुडरो विल्सन ने शुरू में भी ये कहा था 1887 में कि पॉलिसी से आपका मतलब नहीं है, आपका मतलब है इम्प्लीमेंटेशन से. पॉलिसी बनाने का काम पॉलिटिशियंस का है. तो वेबर बहुत क्लियरली कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं. जो ब्यूरोक्रेसी होगी हमारी वो न्यूट्रल होगी, जो भी इम्प्लीमेंट करने के लिए मिला उसको इम्प्लीमेंट करेगी मोस्ट एफिशिएंसी के साथ, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ. सातवां, सिलेक्शन एंड प्रमोशन ऑन मेरिट. कि जब कोई भी मॉडल, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तभी रैशनल हो सकता है, तभी मैक्सिमम लोग उसके साथ जुड़ सकते हैं, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, जब उनको ये एहसास हो कि उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, किसी और को किसी और कंसिडरेशन के कारण कोई प्रमोशन या डिमोशन नहीं मिल रहा है. द ओनली कंसिडरेशन इज़ मेरिट एंड कॉम्पिटेंस. अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप आगे जाएंगे, अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे. अगर ये सिस्टम में हो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेट एंड स्टिक, तो लोग ज़्यादा बेहतर काम करेंगे. तो यहाँ पर वेबर यही कहते हैं कि सिलेक्शन और प्रमोशन मेरिट पे होना चाहिए. अगला जो प्रिंसिपल है इनका वो है स्ट्रिक्ट एंड सिस्टमेटिक डिसिप्लिन एंड कंट्रोल. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सस्टेन कर सकता है, तभी ज़्यादा दिनों तक चल सकता है, जब उसमें एक डिसिप्लिन, बेसिक डिसिप्लिन हो, जिसमें कि सिस्टम लगातार चले, कहीं पर उसको वो रुके नहीं, कहीं पर ऐसा नहीं हो कि भाई ये ऑर्डर दिया गया उसको नहीं पालन नहीं हुआ, द होल सिस्टम विल सफ़र. तो इसलिए है कि स्ट्रिक्ट एंड सिस्टमेटिक डिसिप्लिन एंड कंट्रोल. किसी भी तरह से कोई इसमें गुंजाइश नहीं है कि आप इनडिसिप्लिन्ड हो जाएं, आप ऑर्डर ना माने, आप हियरार्की ब्रेक कर दें. दैट विल नॉट हेल्प. आपका ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक मॉडल तक नहीं पहुंच पाएगा. अगला है यूनिफॉर्मिटी एंड कोऑर्डिनेशन बाय फिक्स्ड रूल्स. कहा कि पहले हमने बात की थी फेयोल में कि वो कहते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन की बजाय इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर है, उससे टीम स्पिरिट बनता है. वेबर कहते हैं नो, ये नहीं है.
आपको रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस से चलना चाहिए। और एक जब आप इनफॉर्मल हो जाएंगे, आप बातचीत से चलने लगेंगे, तो नियम कानून सेकेंडरी हो जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड। रूल इज रूल, लॉ इज लॉ फॉर एवरीवन। तो ये कहते हैं यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एकदम, और फिक्स्ड होने चाहिए रूल्स, उसमें कोई फेरबदल आसानी से नहीं होना चाहिए। इसके द्वारा कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की कोशिश हो कि भाई सबको मालूम हो कि कानून सबके लिए है और सबके लिए बराबर है, हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। और अगला है रिटन डॉक्यूमेंट्स। कहा कि जो कुछ भी हो वो रिटन हो, वर्बल कुछ नहीं। अगर ऊपर से नीचे जा रहा है कम्युनिकेशन, वो भी रिटन जाए, नीचे से ऊपर आ रही है रिपोर्ट, वो भी रिटन आए, जो भी मीटिंग हो वो रिकॉर्ड हो, एवरीथिंग शुड बी रिटन। उससे क्या होगा कि कभी डेविएशन की गुंजाइश कम से कम हो जाएगी, आप डेविएट नहीं करेंगे। तो इसलिए रिटन कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेबर कहते हैं कि इन सारे प्रिंसिपल्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे, देन योर ऑर्गेनाइजेशन विल बी क्लोज टू ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो मोस्ट एफिशिएंट है, जो इंडिस्पेंसिबल है, जो परमानेंट है, जो रैशनल है और जो सारे दूसरे मॉडल से सुपीरियर है। ये लाने के लिए आपको इन प्रिंसिपल्स पे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अब क्रिटिसिज्म्स पे आ जाते हैं। तो पहला क्रिटिसिज्म होता है कि इनका जो क्लेम है कि इनका मॉडल सबसे रैशनल मॉडल है। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यहीं आ जाता है। मर्टन, सेल्जनिक, गोल्डनर, पार्सन्स, सॉरी, ये सारे लोग इस मॉडल को चैलेंज, इसके रैशनैलिटी को चैलेंज करते हैं, क्लेम टू रैशनैलिटी को। मर्टन कहते हैं कि इनका जो एम्फेसिस है ऑन रूल्स वो रैशनल नहीं है, बिकॉज इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप एकदम फिक्स्ड रूल्स पे चल रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और कई बार सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे बिल्कुल टकराव हो जाएगा और सिस्टम फेल कर जाएगा। तो इसलिए रैशनल नहीं हो सकता है। दूसरा कहते हैं कि इतना ज़्यादा आप एम्फेसिस दे रहे हैं रूल्स के ऊपर कि लग रहा है जैसे कि जो पर्पस है वही ख़त्म हो गया, अब ये रूल्स बिकम एन एंड इन देमसेल्व्स। भाई रूल, जो कानून बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, वो किस लिए बनाए जाते हैं? कुछ अचीव करने के लिए। लेकिन जब आप इतना ज़्यादा महत्व देने लगेंगे रूल्स को, तो एंड तो खो जाएगा, आप रूल्स में उलझ के रह जाएंगे। जितना ये जो रेड टेपिज्म की बात होती है, वहीं पे यही है कि सारे रूल्स रेगुलेशन में ही उलझ करके चीज़ें रह जाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती। गोल्डनर कहते हैं द ब्यूरोक्रेटिक टेक्निक्स प्रोड्यूस देयर ओन रिएक्शंस, कि जब आप बिल्कुल फिक्स्ड दिमाग से चलते हैं, ये उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स के अपने उनका अपना ओरिएंटेशन है, मेंटल मेकअप है, मानसिकता है, उसके हिसाब से वो कुछ चीज़ों को लेंगे, कुछ को नहीं लेंगे, और जो नहीं लेंगे उससे रिएक्शन पैदा होगा, और इन ये सारे टेक्निक्स के खिलाफ पीपल विल रिएक्ट, और आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है वो दैट विल गेट डिफीटेड। दूसरा जो क्रिटिसिज्म है वो है चैलेंज टू द क्लेम ऑफ सुटेबिलिटी एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। ये कहते हैं वेबर कि ये जो मॉडल है ये हर जगह कहीं पर भी आप लेके जाएंगे ये बेस्ट रिजल्ट देगा, मोस्ट एफिशिएंट, परमानेंट, दिस दैट, वो हर जगह पे लागू होगा, हर जगह पे ये मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। इसको बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं। वॉरेन बेनिस हैं, प्रेस्थस हैं, रिग्स हैं, ला पलम्बोरा हैं। प्रेस्थस फॉर एग्जाम्पल कहते हैं वेबेरियन मॉडल इज अ प्रोडक्ट ऑफ एलियन कल्चर एंड नॉट क्वाइट सूटेबल फॉर ट्रांसप्लांटेशन इन डेवलपिंग सोसाइटीज। कि वेबर जो हैं वो जर्मन थे, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट। तो ये
इनका जो व्यू है बड़ा एथनोसेंट्रिक है। इन्होंने जर्मन जो इंपीरियल सिविल सर्विस थे उनको उसको ध्यान में रखते हुए अपना ये मॉडल दे दिया। अब अगर इसी मॉडल को उठाकर आप किसी विकासशील देश में लेके जाएंगे तो ये सफल नहीं होगा। इसलिए ये हर जगह पे लागू हो, ये बात जमती नहीं है। फ्रेड रिग्स ने कहा, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस constructed on the same bureaucratic principles would function differently under the impact of indigenous socio-cultural forces। कि अलग अलग जो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण होता है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलग अलग होते हैं। वेबर ने खुद भी लिखा था कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह की अथॉरिटी होती है और अलग अलग अथॉरिटी के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है। लेकिन उसको जब कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हर जगह उतनी ही सफल रहेगी, वहाँ पर वो अपनी बात भी नकार देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम डेवलपिंग सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सामाजिक सांस्कृतिक मिलियू है वो डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पर भी वो मॉडल उतना ही सफल होगा, ये कहना बहुत जायज़ नहीं है। तीसरा जो क्रिटिसिज्म है वो है चैलेंज टू इट्स क्लेम ऑफ एंश्योरिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी, जहाँ पर पूरा जोर था, शुरू से हमने बात की फ्रेड टेलर से लेकर के फेओल से लेके गली कर्विक से लेके वेबर तक, कि पर्पस क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त करना। तो इसमें इनका जो क्रिटिसिज्म है वो है पीटर ब्लाउ, मार्च एंड साइमन और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल वगैरह, जो कहते हैं कि नहीं, मैक्सिमम एफिशिएंसी संभव नहीं है इसमें। पीटर ब्लाउ फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द मेंबर्स आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का जो लक्ष्य है और जो उसके मेंबर्स हैं उनकी जो सोच है, उनके जो लक्ष्य हैं या उनका जो लगाव है उस संगठन के लक्ष्य के साथ, वो डिटरमाइन करता है कि लक्ष्य कितना एफिशिएंटली आप हासिल करेंगे, उसको अचीव करेंगे। जब उसको अपने बिहेवियर को उनके हिसाब से, उनके परसेप्शन के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के बदलाव के हिसाब से वो चेंज करने की स्थिति में होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर एसोसिएट करेंगे संगठन के लक्ष्यों के साथ। ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आर टू रिजिड एंड मैकेनिस्टिक टू प्रोवाइड सच कंडीशंस। ब्यूरोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी देते ही नहीं है। वर्कर के दिमाग पर जैसे घोड़े को वो लगा देते हैं जाब, अब वो बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, वो चाह करके भी अगल बगल की कोई चीज़ें देख करके अपने आप को अडाप्ट या एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल कहता है कि डिले एंड इनएफिशिएंसी आर लॉजिकल consequences of the undue weightage to hierarchy and rules which cause red tapeism। क्योंकि जब आप हियरार्की पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो क्या होगा, एक फाइल चली, वो पहले चीफ एग्जीक्यूटिव से उसके नेक्स्ट होते होते 15 सोपान नीचे पहुंचेगी और यहाँ से फिर चलेगी, तो फिर वो 1 2 3 4 15, इसमें कितना समय गया सरकार में जब कोई फाइल मूव करती है। तो इसीलिए वक्त लगता है, क्योंकि हर लेवल से होके उसको गुजरना है, हर को अपना उस पर कमेंट लिखना है। तो इससे ये तो है कि जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल कानून के मुताबिक होगा, उसको बाईपास करना बड़ा मुश्किल होगा। इतने लेवल्स पे कोई आदमी चीज़ों को गलत तरीके से निकाल ले जाए, ये मुश्किल होगा। लेकिन ये भी फैक्ट है कि इसमें वक्त बहुत ज़ाया होता है। दूसरा कि जब आप रूल्स रेगुलेशंस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, तब क्या होता है, कई बार एंड जो है वो गायब हो जाता है। एंड तक पहुंचने के पहले ही आप रूल्स रेगुलेशंस में उलझ के मामला ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको अपने अगल बगल मिलेंगे कि जहाँ रूल्स रेगुलेशंस में पढ़ के और जो पर्पस है वही दैट गेट्स डिफीटेड। और इसी के लिए वो वर्ड यूज़ होता है रेड टेपिज्म। जब रूल्स रेगुलेशंस हियरार्की के चक्कर में इतना वक्त बीतता है कि कई बार वो प्रपोजल ही ख़त्म हो जाता है।
तो ये कहते हैं कि भाई दिस मैक्सिमम एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल बाय दिस वेबेरियन मॉडल। लेकिन इतने क्रिटिसिज्म्स के बावजूद वेबर आज भी सबसे महत्वपूर्ण चिंतकों में एक माने जाते हैं और इनका जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है वो आज भी बहुत सारे रिसर्चेस उसके ऊपर अभी भी हो रहे हैं। और जैसा पहले हमने बात की कि या तो उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए या उसके वेरियस जो वर्शंस हैं उसके रूप में बात आ रही है। अभी जैसे जो जितने अफ्रो एशियन कंट्रीज़ हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद हुए, उनकी बात अगर हम करते हैं तो जब उनके ऊपर कॉलोनियल पावर्स रूल कर रही थी उस समय जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल था दैट वाज वेरी सक्सेसफुल और वेरी एफिशिएंटली इट वर्कड। और उसके बाद भी जब विकासशील देशों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो बदल गई हैं और इसलिए कुछ नई बातों को लाने की ज़रूरत है। लेकिन जो एफिशिएंसी लाने के लिए और स्टेबिलिटी के साथ एफिशिएंसी, ये डेवलपिंग सोसाइटीज़ का एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनके सामने कि डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी, तो उसमें ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को पूरी तरह से नकार देना, पूरी तरह से छोड़ देना बहुत उचित नहीं होगा। क्योंकि स्टेबिलिटी को हम अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो बहुत सारे देश जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद हुए वहाँ पर हम आप सब जानते हैं कि किस तरह से ऑटोक्रेटिक एंड मिलिट्री इंटरवेंशंस हुए। तो मैं अभी इसको यहीं पर विराम देता हूँ। There are many theories, so how if someone new who try to understand this theory in different segment, in different, so what your suggestion how to read this theory differently? मैंने शुरू में ही कहा था कि you have to understand one thing very clearly. All the administrative, all the thinkers, all the theories are almost pointing to the same with a slight difference. They want the organization to be effective. Effective कैसे बने? तो जो क्लासिकल थियरी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी है, वेबर है, ये टास्क ओरिएंटेशन, जैसे एक प्लेन पे अगर टास्क ओरिएंटेशन है, दूसरा रिलेशन ओरिएंटेशन है, तो अगर 0 से 9 में ये 9 पे अगर आ जाते हैं तो टास्क ओरिएंटेशन पूरा हो गया। लेकिन अगर आपका सेटिस्फैक्शन नहीं है लोगों का, जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत इफेक्टिव नहीं होगा। दूसरे लोग जो है जो बहुत ज़्यादा इस पर एम्फेसिस दे देंगे और टास्क को इग्नोर कर देंगे, फिर इफेक्टिव नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के बात यही हो रही है कैसे एडजस्ट किया जाए टास्क ओरिएंटेशन भी और लोगों का सेटिस्फैक्शन भी। Okay, so in a given situation, what do you suggest that an administrator is required to make a quick decision? So in that case, they need to consider all these theoretical aspects and then make a decision, or just tackle the situation first. एक जो अभी तक जितनी बातें हमने की हैं ये क्लासिकल स्कूल और साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो बातें की हैं, यहाँ पर किसी के पास बहुत गुंजाइश नहीं छोड़ी है इन्होंने। उन्होंने कहा स्ट्रक्चर जो है वो अगर आपने प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर अपने आप आपको चीज़ों को लेके चलेगा। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग की बात आप करते हैं तो आगे चल के जैसे हर्बर्ट साइमन हैं और दूसरे और लोग हैं जिन्होंने इस पर पूरा थियरी दिया है कि हाउ टू मेक डिसीजंस। तो उसमें हालांकि इसमें भी कुछ बातें थी स्टाफ की कि स्टाफ की मदद ले सकता है एग्जीक्यूटिव, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है या हायर एग्जीक्यूटिव है, टू टेक इमीडिएट डिसीजंस। लेकिन ज़्यादातर डिसीजंस जो हैं वो स्ट्रक्चर अपने आप सिखा देता है अकॉर्डिंग टू दीज। फॉलो द रूल्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल थ्योरी। फॉलो द रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं कि वो अपने आप चीज़ों को लेके चलेंगे। आपका काम सिर्फ ये है कि जो आपको बताया गया उसको सबसे अच्छे तरीके से आप कर दीजिए। ओके, so well friends, with these words we conclude the lecture. I thank all of you for watching the lecture, and on your behalf I thank Dr. Mani Bhushan for giving such a wonderful and insightful lecture on administrative theory. Thank you very much.